So, good morning. Today's class we will discuss on differential equation reducible to exact form. As in previous class, we have discussed on exact differential equation, and we see which type of equation is called exact differential equation. What is the necessary and the sufficient condition for the exactness of a differential equation? And if an equation is exact, then how to find the solution of that equation? We already discussed in the previous class. Right? Now, today we will see which types of equations are reducible to exact form and how to reduce in the exact form. Okay, as in previous class, we discussed a differential equation m dx plus n dy is equals to 0. Suppose ordinary differential equation of first order, first degree in the form of m dx plus n dy is equals to 0, and if this equation is satisfied the condition del m upon del y is equal to del n upon del x, then we can say this ordinary differential equation of first order, first degree is an exact differential equation. Okay, we have already discussed in the last class. If an ordinary differential equation of this form, if satisfied this condition, then we can say the equation is exact differential equation. If suppose these two are not equal, if these two are not equal, then the equation is not an exact differential equation. Okay, then in this case, it means the necessary and the sufficient condition for the exactness is not satisfied. When the condition is not satisfied, then it means the given equation is not an exact differential equation. But it is not necessary, we cannot reduce in exact form. We can reduce such a types of equation in exact form. How to reduce in exact form? For this, we choose a suitable factors. We choose a suitable factor or terms. You can say a term or a factor that we multiply in the given equation. Then the equation is reduced in the exact form. And this suitable term or suitable factor is called integrating factor, and in short we write it IF. This suitable term or factor is called integrating factor. When we multiply the given equation by this factor, then the given equation may be reduced in the exact form. Okay, and these integrating factor, we can find these integrating factor by the various rules. And some of the rules in our syllabus we have discussed here. Okay, तो क्या हमने कहा कि जब हमारे पास जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो कब एग्जैक्ट नहीं होगी? जो आपकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है एग्जैक्टनेस, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही मींस del y upon del n अगर इक्वल नहीं है del n by del x पे, it condition fails. Okay, when the condition is failed, the condition is not great. अब एग्जैक्ट नहीं है तो इसका मतलब कि हम उसको सॉल्व नहीं कर, तो हम क्या करेंगे? ऐसे उस इक्वेशन सेकंड सेम में होता है, फर्स्ट सेम में तो ऋतिक गुप्ता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट में हो जाए तो भर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उस इक्वेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे।
तो रिड्यूस करने के लिए हमको क्या ऑप्शन यूज करना पड़ता है, उस इक्वेशन को एक्सक्यूटेबल टर्म से या एक्सक्यूटेबल फैक्टर से, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब हम उस गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन हो सकता है, हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है, इट मे बी दैट इक्वेशन इज कन्वर्ट इनटू एग्जैक्ट फॉर्म। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, उन डिफरेंट रूल्स को अपन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर रूल प्रॉपरली फॉलो हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि इक्वेशन रिड्यूस हो रही है, अदरवाइज इक्वेशन रिड्यूस नहीं होगी। तो ये रूल्स क्या है तो अपन देखें, आज अपन केवल 2 रूल्स पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 रूल्स पे अपन डिस्कस करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। द रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, rule first, if m dx, sorry, m into x plus n into y is not equal to 0, if m into x plus n into y is not equal to 0 and the equation and m dx plus n dy is a homogeneous equation, okay, then the integrating factor is 1 upon m into x plus n into y. Okay, the first rule is if m into x plus n into y is not equals to 0 and the given equation, जो भी आपकी given equation है, is a homogeneous, or in other word we can say if m and n are homogeneous, आपने m और n कंपेयर करके निकालते हैं, अगर वो दोनों कैसे हैं, homogeneous हैं, तो we can say the integrating factor is 1 upon mx plus ny, then we choose the integrating factor by this formula and we multiply the given equation by this integrating factor and reduce that equation in exact form. Okay, so now first we solve a problem on the first rule, पहले रूल पे बेस्ड अभी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उसमें समझेंगे कि इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो रही है एग्जैक्ट फॉर्म में, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज solve the equation x square y, question is x square y dx minus of x cube plus y cube into dy and this is equals to 0. X square y dx minus of x cube plus y cube into dy is equals to 0. Okay, तो फर्स्ट रूलिंग आपका वही है, स्टेप अपन वही फॉलो करेंगे जो एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद m dx plus n dy is equals to 0. Okay, तो फर्स्ट वी कंपेयर, comparing 5 मिनट 5 नहीं 50 मिनट, ठीक है, क्लास 12:40 क्लास को ही छोड़ सर फॉर्म दे दीजिए तो फिल कर देना। So first we comparing equation number 1 with m into dx plus n into dy is equals to 0.
then we get m is equals to, कंपेयर किया, देखें आपका m कितना आ रहा है यहाँ पे, जो dx का मल्टीपल है that is m, so the m is x square y and n is equals to माइनस साइन भी आएगा, माइनस ऑफ x क्यूब माइनस ऑफ y क्यूब. Now we differentiate m with respect to y partially. ओके, तो x स्क्वायर y को जब अपन विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डेल बाय डेल y आप किसका सॉल्व करेंगे, y का, एंड दैट इज 1. सो वी गेट x स्क्वायर एंड नेक्स्ट वी फाइंड del n अपॉन del x, मींस n को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है पार्शियली. सो the derivative of x cube with respect to x is minus of 3x square, and the differentiation of y cube with respect to x is always 0. So we get minus of 3x square. Now what we see here? We see that the del m upon del y is not equal to del n upon del x. अब कंपेयर कर रहे हैं, this is x square and this is minus of 3x square. So both are unequal. If the condition is fail, then the equation is not an exact equation. Okay? अपन यहाँ पे comments क्या लिखेंगे? So equation 1 is not an exact differential equation. ओके, आपने ये तो बता दिया कि इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है. अब एग्जैक्ट नहीं है तो आपके पास अब सेकेंडरी ऑप्शन क्या आ गया था कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं. तो रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या कहा कि आपके पास कुछ एक रूल्स है, इन रूल्स की हेल्प से आप क्या निकालते हो, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशन बनती है वो आपकी कैसी होती है, एग्जैक्ट होती है. तो पहले तो हम देखें कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा. तो अभी मैंने क्योंकि आपको केवल फर्स्ट रूल बताया है तो डेफिनेटली फर्स्ट रूल पे बेस्ड ही क्वेश्चन होगा. तो अपन देखें कि फर्स्ट रूल यहाँ फॉलो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, राइट. तो क्या किया, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग मेरे को दो चीज टेस्ट करनी लेती है. एक तो m इंटू एक्स एन इंटू वाई, मीन जो भी आपका m गिवन था उसको एक x से मल्टीप्लाई करना है और n को y से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो दोनों का सम आएगा वो जीरो नहीं आना चाहिए. अगर जीरो नहीं आ रहा है तो आपकी आधी कंडीशन तो फॉलो हो गई. और सेकेंडली आपको ये भी देखना है कि जो गिवन इक्वेशन थी वो होमोजीनियस है या नहीं है. अब आप उसको ऐसे भी कह सकते हो कि केवल m और n आपको देखना है. m अगर होमोजीनियस फंक्शन है, n भी होमोजीनियस फंक्शन है, तो आपकी सेकंड पार्ट ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई होता है. अगर ये दोनों पार्ट सेटिस्फाई हो गए तो आप कह सकते हैं कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फार्मूले से चूज कर सकते हैं. तो यहाँ अपन देखें क्या ऐसा कुछ हो रहा है. ठीक है, अगर हो रहा है तो अपन फर्स्ट वाले रूल से इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे चूज कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ अपन देखें, नाउ वी सी दैट पहली क्या m और n आपके होमोजीनियस बन रहे हैं या नहीं. तो देखिए यहाँ पे m क्या था, x क्यूब स्क्वायर इंटू वाई, मीन्स x की डिग्री 2 और y की डिग्री 1, टोटल डिग्री कितनी हो गई 3. ठीक है, मीन्स m की जो भी आपका फंक्शन था उसकी डिग्री कितनी थी 3. इसी टाइप से अगर अपन n पे आए तो यहाँ पे x की डिग्री भी 3 है, y की डिग्री भी 3 है, यानी m की डिग्री भी 3, n की डिग्री भी 3. जब दोनों फंक्शन की डिग्री सेम है तो आप कह सकते हो कि m और n दोनों कैसे हैं, होमोजीनियस है. होमोजीनियस का मतलब when the degree of each term in a function or polynomial
are same, then the function is called homogeneous. तो m और n दो अलग अलग फंक्शन थे, दोनों की डिग्री सेम थी, 3 डिग्री थी, तो आप कह सकते हैं कि these two are homogeneous, राइट? तो पहला पार्ट तो अपना ये क्लियर हो गया कि जो आपकी इक्वेशन है होमोजीनियस है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि we see that equation 1 is homogeneous. ठीक है, एंड अब होमोजीनियस हो गई तो क्या सेकंड पार्ट को सेटिस्फाई कर रही है क्या, mx प्लस एन वाई को? तो यहां पर देखें mx प्लस एन वाई ये कितना आता है, प्लस इज एंड mx प्लस एन वाई, m की जो भी वैल्यू है उसको एक बार और x से मल्टीप्लाई किया, कितना था x स्क्वायर y, एक x से मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ जाएगा x क्यूब y प्लस, ठीक है। अब जो आपका n था उसको हमने y से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा माइनस के x क्यूब y एंड माइनस ऑफ y टू दी पावर 4। फिर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, ये माइनस प्लस माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, रिजल्टेंट क्या बचा, ओनली माइनस ऑफ y टू दी पावर 4। रिमेनिंग टर्म्स क्या रही, y टू दी पावर 4 विद माइनस साइन। क्या ये जीरो के इक्वल आया, नहीं आया, है ना? तो अपन कह सकते हैं इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मींस जो आपने रूल 1 लिखा था उस रूल 1 के अकॉर्डिंग आपको क्या चेक करना था, क्या mx प्लस mdx एंड dy होमोजेनियस है? तो आपने बता दिया ओके इट इज होमोजेनियस, जो हमको इक्वेशन दी है वो होमोजेनियस है। फिर आपको चेक करना था mx प्लस ny जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, आपने वो भी चेक करा, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। क्लियर? यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम इस फार्मूले से चूज कर सकते हैं। ओके, देयरफॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन m into x plus n into y, मींस 1 अपॉन mx plus ny, ये ऑलरेडी अपन ने निकाला था, दैट इज माइनस ऑफ y की पावर 4। तो ये हो गया माइनस में 1 अपॉन y की पावर 4, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें, जिससे आपको क्या मिलेगा, जो भी नई इक्वेशन बनेगी वो आपकी कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी, राइट? तो नाउ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 1 अपॉन y टू दी पावर 4। अब जब मैंने आपकी गिवन इक्वेशन को माइनस के 1 अपॉन y की पावर 4 से जब मल्टीप्लाई किया, तो देखिए आपकी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर y, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 1 अपॉन y की पावर 4, तो y से 1 डिग्री पावर 4 कैंसिल हुई, तो क्या बचा माइनस में x स्क्वायर अपॉन में y क्यूब इंटू dx, देन माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। x क्यूब को y की पावर 4 से डिवाइड किया, दिस इज x क्यूब अपॉन y टू दी पावर 4, तो यहाँ y क्यूब से y की पावर 4 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा ओनली 1 अपॉन y dy is equals to 0, and say this is the equation number 2. okay, this is the equation 2, और जो इक्वेशन 2 है वो आपकी कैसी है, एग्जैक्ट है। अगर आप उसको चेक करना चाहो तो वापस से जो एग्जैक्टनेस चेक करने की आपकी कंडीशन होती है, del m by del y del n by del x, दोनों में इक्वलिटी का रिलेशन अगर आ गया तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे फिर से चाहे तो चेक कर सकते हैं, हियर m कितना, इक्वेशन 2 की बात हो रही है, इक्वेशन 2 में m कितना, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ओके, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, मींस del m अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव किसका निकलना है, 1 अपॉन वाई क्यूब का,
न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, y की पावर कितनी हो गई -3, डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा y टू दी पावर -4 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3। तो यहां से रिजल्टेंट क्या हो जाएगा +3x² अपॉन में y टू दी पावर 4। इन द सेम मैनर n इज इक्वल टू x³ अपॉन y टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन y। इसको आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, देन del n by del x इज इक्वल टू x की पावर 3 डिफरेंशिएट हुआ क्या जाएगा 3x² अपॉन में y की पावर 4 तो कांस्टेंट था, तो यहां से आपका बचा 3x² अपॉन y टू दी पावर 4 और 1 अपॉन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या जाएगा 0। तो यहां पे अब अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इक्वेशन 2 के लिए हमने del m by del y del n by del y को सॉल्व किया वो आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर देखिए मैंने कमेंट्स दिया कि इन इक्वेशन सेकंड these two are equal, दोनों कैसे हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। सो वी कैन से इक्वेशन 2 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट हो गई तो इसको सॉल्व करने का फार्मूला जो अपन पहले एग्जैक्ट को जिससे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, यानी वापस अब अपन को प्रीवियस में जो अपन ने मेथड सीखी है उसी को अप्लाई करेंगे, राइट। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, now the solution of equation second, so the solution of equation second is by using formula integral y is constant m dx plus integral n dy is equals to c, but n is free from x। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे n में हमको क्या यूज करना रहता है, वो टर्म जो x से फ्री हो, केवल वही वाली। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इंटीग्रल y इज कांस्टेंट m किसके लिए, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि एग्जैक्ट कौन सी थी इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में m कितना था -x² अपॉन y क्यूब, this is minus of x² upon y cube dx plus integral of n, n आपका क्या था x³ upon y to the power 4 plus 1 upon y। तो अपन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन फर्स्ट टर्म द वेरिएबल x is एक्सिस, ठीक है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, we choose only those term that not containing variable x। तो सेकंड टर्म में अपन ने क्या देखा कि इसमें वेरिएबल x नहीं है, तो हम केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो प्लस 1 अपॉन y dy is equals to any constant c, then finally we integrate the term। तो यहां से 1 अपॉन y क्यूब आपका कांस्टेंट था, बाहर हो गया, x² को इंटीग्रेट किया तो क्या जाएगा x³ 3, 1 अपॉन y इंटीग्रेट हुआ क्या जाएगा log of y is equals to c, ओके। और एलसीएम लेना चाहे 3 का वो भी अपन कर सकते हैं, y क्यूब का भी अपन एलसीएम में ले सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज x³ plus 3y cube into log y is equals to c into 3c into y cube. This is the solution of the given equation. Is it clear? Yes, sir. Okay? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अपने को मेन कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि हाउ टू रिड्यूस इन एग्जैक्ट फॉर्म। और एग्जैक्ट फॉर्म में जब जो रिड्यूस हो गई इक्वेशन तो फिर हमको कुछ नहीं करना है, जो अपन ने प्रीवियस में एग्जैक्ट को सॉल्व करने का तरीका सीखा है उसी को अप्लाई करना है और हमको कुछ नहीं करना है। तो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमको वही नहीं आएगा तो हम ये इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद भी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
right? So this is the problem based on first rule. Now we see what is the second rule to reduce a equation in exact form. ठीक है, रूल बाय रूल आप क्वेश्चंस करना है अपन को, ठीक. नाउ वी सी द सेकंड रूल फॉर rule second. The second rule is if m into x minus n into y is not equal to 0. फर्स्ट रूल में आपने क्या बताया कि mx plus ny का सम नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना. और सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. और साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, and the given equation of the form y into function f1xy dx plus x into function f2xy dy is equals to 0. ठीक है, y into function f1xy dx plus x into f2xy dy is equals to 0. Then the integrating factor. Then we choose the integrating factor is equals to 1 upon mx minus ny. ओके, अब पहले रूल में क्या बताया था आपने कि mx और ny का सम नॉट इक्वल 0 हो जाए. और दूसरी कंडीशन जो आपने लिखी थी कि वो क्या थी कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें m और n कैसे हो, होमोजीनियस हो. ठीक है, तो यहां पे अब देखिए सेकंड रूल में दोनों ही कंडीशन बदल गई. सम की जगह क्या आ गया, डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. और दूसरा जो गिवन इक्वेशन है किस फॉर्म में होनी चाहिए, y इंटू फंक्शन ऑफ f1xy dx. इसका मतलब समझे कि dx का जो मल्टीपल होगा, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि उस dx का मल्टीपल वेरिएबल y हो, और जो रिमेनिंग फंक्शन उसमें मल्टीप्लाई में आ रहा है वो किस फॉर्म में हो, x इंटू वाई की टर्म्स की फॉर्म में हो. ठीक है, और जो dy का मल्टीपल हो वो क्या हो, x हो, और साथ ही साथ जो फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई में हो दैट इज द मल्टीपल ऑफ एक्स वाई. यानी सीधी सी बात है, ये वाली टर्म दोनों जगह सेम आनी चाहिए. ठीक है, टर्म सेम नहीं होगी लेकिन वहां जो फंक्शन होंगे वो सेम टाइप से होने चाहिए, यानी एक्स और वाई के मल्टीपल्स होने चाहिए. और dx का मल्टीपल यहाँ y होना चाहिए और यहाँ dy का मल्टीपल x होना चाहिए, यानी अपोजिट वेरिएबल्स होने चाहिए. तो आप कह सकते हैं कि हम ऐसी, अगर हमारी ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है किसी इक्वेशन में जो एग्जैक्ट नहीं है, तब उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं. राइट, तो देखें इसी पे बेस्ड अब अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इस पे अपन सॉल्यूशन निकालेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन इज solve the equation y into 1 plus xy, y into 1 plus x into y dx plus x into 1 minus of xy dy is equal to 0. Okay, the given question is solve the equation y into 1 plus xy dx plus x into 1 minus xy dy is equal to 0. Right? So say this is the equation number 1. तो सबसे पहले तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो इक्वेशन 1 है एग्जैक्ट है या नहीं है,
वो तो अपन जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे, रिक्वायर्ड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक अपन नहीं कह सकते हैं कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। और अगर एग्जैक्ट है तो फिर तो डायरेक्ट सोल्यूशन आएगा, और नहीं है तो फिर आपको उसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए भी सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप रूल ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट वी सी इफ द इक्वेशन satisfy the rule 1, then we can reduce it by using integrating factor that we use in first rule. If the first rule is failed, then we use the second rule. If the second rule is failed, then we see the third rule. तो हमको स्टेप वाइज स्टेप हर एक रूल पे अपन को आगे काम करना है, इसलिए आपको सारे रूल्स याद होना जरूरी है। इसलिए वन बाय वन एक एक रूल आपको याद करना है और स्टेप में याद करना है। क्लियर? तो अब देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्टली कंपेयर द इक्वेशन, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with m into dx plus n into dy is equals to 0. Then we get m is equals to, यहाँ पे अब m कितना, ये पूरा, और चाहे तो इसमें आप y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Then we get y plus xy square and n कितना, x minus x square y, x को मल्टीप्लाई कर दिया। Then differentiate partially m with respect to y, then we get the derivative of y with respect to y is 1 and plus x into y square.